Dear students, we can see on the board mensuration chapter from geometry 7.3 10th standard. We are doing practice set 7.3. Question 1 is here. Before solving that, let's understand these three formulas. Area of sector is theta upon 360 into pi r square. Theta means measure of arc. Length of arc equals to theta upon 360 into 2 pi r. Theta means this central angle, measurement of this angle. Area of sector formula, length of arc into r upon 2. So you can see area of sector, two formulas are there. Depending upon the information given, we are going to use the formula. So let's solve this question where they have given radius is 10 centimeter, measure of arc, that is theta equals to 54 degree, pi value they have given 3.14 because we require pi value in the question. So find area of sector. So let's use this formula and find the answer. One more thing, if we have to find the area of sector, so geometrically area of sector means this shaded region is called area of sector, okay, and this length is called length of arc, okay. So let's solve. So we have shown the solution here. Area of sector's formula is theta upon 360 pi r square. Putting the value, we cancel here. 54 upon 360 can be cancelled in table of 18. 18 3s are 18, 20s are. Okay. After that, we can cancel 20, 10 1s are, 10 2s are, 20. Then again, 2 1s are, 2 5s are, 10 can be cancelled. So what we are left with 3 into 3.14 into 5, that gives us 47.10 centimeter square because it's area. So centimeter square. So let's go for second question. Question number 2 says that measure of arc is 80 degree, that is theta 80 degree. Radius is 18 centimeter, r equals to 18 centimeter. R is invisible here, okay. Radius is 18 centimeter. Find length of arc. Let's solve. So length of arc formula is this. You can see here. Putting the values, so 80 upon 360 get cancelled. 4 2s are 8 and 4 9s are 36. 0 0 cancelled. Then here it remains 9. 9 2s are 18. 9 1s are 9. So whatever we get in the numerator, 2 2 2 into 3.4, 14. So answer we get 25.12 centimeter, only centimeter because it is length of arc. So easy. Let's go for third question. दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क है 2.2 और एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है. तो जो ढूंढना होता है पहले उसकी इन्फॉर्मेशन और उससे एप्लीकेबल फार्मूला जो होता है वो चेक कर लीजिए. तो एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है. दो फार्मूला हैं, इसमें थीटा चाहिए जो यहाँ पे है नहीं, तो ये फार्मूला तो गया. फिर एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फार्मूला है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस चाहिए, वो यहाँ पर है अपॉन 2, तो इससे हम ढूंढ सकते हैं. लेट्स सॉल्व. देखिए कितना बबलू सा चिंटू सा 3 स्टेप वाला क्वेश्चन है. एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिख दिया, वैल्यू डाल दी. 2.2 था, नीचे 2 था, तो 2 1s 2 11s 1.1 हो गया. 3.5 इंटू 1.1 किया, वी गेट 3.85 धमाल सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज इट्स एरिया ऑफ सेक्टर. दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ सेक्टर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ढूंढो. फिर से हम याद कर लेते हैं कि एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई और आर यहाँ पे है तो उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरे सर्कल का. अब ये पूरे सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ ये छोटा सा सेक्टर, एरिया ऑफ ये छोटा सा सेक्टर जिसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये निकाल दूंगा तो जो पार्ट बचेगा उसका मुझे एरिया ढूंढना है, दैट इज़ कॉल्ड मेजर सेक्टर.
तो चलो सॉल्व करते हैं। होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का मैंने फॉर्मूला लगाया और उसमें वैल्यू पुट की, तो मुझे आंसर भी मिल गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ढूंढना है, तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को, जो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, उसको माइनस करेंगे तो ये 314 आया बड़ा वाला सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल में से 314 में से मैंने 100 को माइनस किया, वी गेट 214। दैट्स द सॉल्यूशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर गिवन। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डाल के हम ढूंढते हैं। यहाँ पे पहले से ही दिया है, तो इस जगह पे आ जाएगा ये 30। आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, हमें ढूंढना है। तो ये ऐसे ही रहेगा, इनटू आर की जगह पे ये 15 आ जाएगा अपॉन 2। फिर ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, आर नीचे आ जाएगा और हमें मिलेगा लेंथ ऑफ आर्क। पर ये आपको खुद करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें रेडियस 7 दिया है। मेजर आर्क MBN। ये फिगर के अंदर ये जो MBN है, ये सेक्टर का मेजर ऑफ आर्क दिया। आर्क का मेजरमेंट है, मतलब सेंट्रल एंगल थीटा भी हमारे पास, दैट इज 60 डिग्री। फिर उसका यूज़ करके हम एरिया ऑफ सर्कल ढूंढ सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे या तो 22/7। तो 22/7 लेंगे इंटू 7 क्योंकि रेडियस भी 7 है, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। और जब एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा फिर हम पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो जो मिलेगी वैल्यू वो यहाँ पे लिख सकते हैं। थीटा 60 दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और फिर ये लास्ट में ढूंढना है एरिया ऑफ सेक्टर OMN। सेंटर में O है, फिर MN, इस सेक्टर का कितना एरिया होता है। तो अगर बड़ा सर्कल में से, ठीक है, जो बड़ा सर्कल है उसमें से हम ये निकाल देंगे तो फिर हमें मिल जाएगा MBN। तो चलो सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, साफ साफ इजीली कैंसिल हो गया, हमें तीनों आंसर मिल गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे एक फिगर बना हुआ है। फिगर के अंदर सेंटर है PABC। ये एक सेक्टर है, P-ABC एक सेक्टर है जिसमें रेडियस 3.4 दिखाया गया है। सेंट्रल एंगल मेजरमेंट नहीं दिया है और हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ABC दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है? P से लेके A तक, A से लेके B, C तक और C से लेके P तक ये जो लेंथ है वो 12.8 दिया है, 12.8 सेंटीमीटर। तो अगर हमें लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ सेक्टर दिया है, तो वो क्या होता है उसको हम पहले शो करेंगे कि मतलब उसका क्या क्या वैल्यू प्लस होता है पेरीमीटर में। तो डियर फ्रेंड्स देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। रेडियस दिया था 3.4, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का वैल्यू था 12.8,
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एक्चुअली होता है रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क। कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे देखिए ये प्लस ये, सो दैट बिकम्स पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब इसका वैल्यू तो दिया है 12.8, मैंने लिख दिया। आर भी दिया है 3.4 लिख दिया। लेंथ ऑफ आर्क नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दिया। न्यूमेरिकल्स को एक साइड में किया, लेंथ ऑफ आर्क को एक साइड में, मुझे मिल गया लेंथ ऑफ आर्क 6 सेंटीमीटर। अब इसको यूज़ करके मैं एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी फाइंड कर सकता हूँ। पी ए बी सी पूरा अंदर का शेडेड एरिया फाइंड कर सकता हूँ। फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर अपॉन 2। वैल्यू डाली, कैंसिल किया और मिला 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होप अब तक का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया आपको समझ में आया, इजी लगा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी और व्हाट्सएप मी, and let's see you in the next video. Thank you very much for your cooperation and support. Love you very much.